behavior. What is interpersonal behavior? A interaction between the two or more people is called interpersonal behavior. Studying that interaction is called as study of interpersonal behavior. Transactional analysis is nothing but this interpersonal behavior study. Now, transactional analysis specifically is not only understanding what other things about during that interpersonal behavior, but also an creation of awareness about the self. The first dimension, Johari window, was more about understanding the self. Second is ego state, PAC model, which is also called a structural analysis. P stand for here parent, A stand for adult, C stand for child or children. What is ego state? What is ego state here? So now here ego state means it is something which a person feels at a certain point of the time. How a person is feeling, how he is behaving at any certain point of the time is called as ego state. Now let's say बड़ा ईगो दिखा रहा है, ये बहुत नॉर्मल लैंग्वेज है, आपने सुना होगा, ये इतना ईगो मत दिखा. सो व्हाट इज दैट? अ वे ऑफ अ पर्सन इज बिहेविंग. आप सारे दोस्त लोग मिलके कुछ ना कुछ डिसाइड कर रहे हो एंड ऑल ऑफ सडन आपका फ्रेंड बोला नहीं मुझे नहीं करना. सो इट इज लाइक इतना ईगो मत दिखा, तो इतना ईगो मत दिखाना, अपना ईगो अपने पास में रख. सो व्हाट इज दैट? It is a kind of in behavior. For organizational behavior, when we study the organization behavior, ego state means what a person is feeling or behaving at certain point of the time. That ego state differs. Now, according to Dr. Eric, there can be 3 different ego state. क्या हो सकते हैं? 3 different ego state हो सकते हैं जब एक person behave करता है. What are these 3 ego state? Parent ego, adult ego, child ego, often called as PAC model. Now this difference between the 3 state or categorization of 3 state as a parent, adult or child ego is not as the basis of the ages, year. Child का मतलब यहाँ नहीं जो छोटा बच्चा है, या adult यहाँ नहीं जिसने 18 साल कंप्लीट, नहीं. It is on the pattern of the behavior. कि कई बार ऐसा होता है, मैं एज एन अपने बच्चे के लिए अपने किड के साथ में, अपने बच्चे के साथ में जब इंटरेक्ट कर रही हूँ तो मैं एज एन पेरेंट बिहेव करती हूँ. जब मुझे अपने करियर से रिलेटेड डिसीजन लेना है तो मैं एक अडल्ट एनालिसिस करके डिसीजंस लेती हूँ, वो एक अडल्ट बिहेवियर है. जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ, जब मैं अपने फ्रेंड सर्कल में होती हूँ, जब मैं अपने पेरेंट्स के घर में होती हूँ, तो मेरा जो बिहेवियर होता है एज एन किड होता है, एज एन चाइल्ड होता है. हम जिद कर लेते हैं जब अपने माँ बाप के घर में होते हैं, हम फ्रेंड सर्कल में भी जिद करते हैं कि नहीं नहीं मेरी बात सुनो. सो दैट इज अ चाइल्ड ईगो. सो द क्लासिफिकेशन इज नॉट मेड ऑन द बेसिस ऑफ एज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, रादर द वे द इंडिविजुअल बिहेव. This is observed, and it is observed that people of any age group may possess varying degrees of ego state. कई बार बहुत सारे बच्चों को आपने देखा है बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो हम बोलते हैं ना ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है. What is that behavior? Being a child, वो बच्चा जरूर है लेकिन उस वक्त वो एक लॉजिकल वे में रीजन देता है, समझदारी की बात करता है, तब हम कहते हैं कि ये समझदार बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो हम कहते हैं वो अडल्ट ईगो में है. तो किसी भी एज के लोग ये 3 स्टेट्स में से कोई भी बिहेवियर कभी भी कर सकते हैं. Sigmund, now this is important. Freud was the first to believe that there are 3 sources within the human personality that stimulate, monitor and control the behavior. So Sigmund was the first one that human behavior in the human personality is or stimulated, monitored or controlled. What are those 3? These 3 important ego states are child, adult, parent. So this was first time given by Sigmund Freud. He was the first one to identify. Then the defining into structural analysis was Eric Berne. Ego state, this is an important aspect of transactional analysis which symbolize the another aspect of self known as ego state of person. People interact with each other in the terms of 3 psychological position or behavior pattern known as ego state. The ego state are the person way of thinking, feeling, behaving at a certain point of time. Now what is parent ego? Parent ego के characteristics को याद रखने हैं
क्या होता है पेरेंट ईगो में, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। सी अगर हम इसको ना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने से पहले अगर हम अपने पेरेंट्स की बात करते हैं, हमारे जो पेरेंट है घर में वो यूजुअली कैसे होते हैं, रूल बनाते हैं ना, टाइम पे घर आना है, टाइम पे घर से जाना है, आई मीन टू से विद इन द टाइम आप घर में आओगे, इधर उधर नहीं घूमोगे, वो रूल बनाते हैं, वो प्रोटेक्टिव होते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, थोड़ा भी लेट हो गया तो कॉल्स पे कॉल्स करेंगे, मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं, ये बेटा ये गलत है, ये बेटा सही नहीं है, जजमेंटल भी होते हैं, आपको जज भी करते हैं कि आपने ये सही नहीं किया, ये गलत किया है, आपको अपब्रिंगिंग देते हैं, आपको संस्कार देते हैं, आप में वैल्यूज डालते हैं। और हमारे पेरेंट्स के साथ में हमारा वो रिलेशनशिप थोड़ा डिस्टेंस का ही रिलेशनशिप होता है, हम उनके साथ एकदम फ्रेंडली बिहेव नहीं करते। तो जब वो सारे कैरेक्टरिस्टिक लेकर कोई पर्सन बिहेव करता है, उसे हम कहेंगे कि वो पेरेंट ईगो में। इज दिस क्लियर? सो पेरेंट ईगो मीन्स वैल्यूज, एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स an integral part of personality of individual. Whatever parent are showing the values, the attitude, the behavior, when certain individual carries all those characteristics into himself, that state would be called as a parent ego. Now there are people in your friend circle also, they keep on treating you like children. आपके भी फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग होते हैं कि आप बोलते हो ना ये तो बहुत केयर करता है, सबकी केयर करती है, सबके लिए प्रोटेक्टिव है, दे आर द पर्सन हु एक्चुअली कैरी द पेरेंट ईगो. दिस पीपल टेंड टू टॉक टू द पीपल एंड ट्रीट अदर्स लाइक चिल्ड्रन. द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन विद पेरेंट ईगो आर जजमेंटल, रूल मेकर, मॉरलाइजिंग, ओवर प्रोटेक्टिव, अपराइट, वैल्यू लैडन, डॉगमेटिक, डिस्टेंस, indispensable. The parent ego refers to the behavior, attitude of an emotionally significant individual who acted with a quiet maturity when he was a child. This tends to be present in an individual when they were as child, जब वो छोटे थे तो वो इमोशनली मेच्योर्ड बिहेव करते थे बचपन से ही. जैसे कई बार होता है जिनके पेरेंट्स सेपरेटेड हो जाते हैं, या हमारे जो पुअरर फैमिली के बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी मेच्योर्ड हो जाते हैं, वो मेच्योर्ड बिहेवियर रखते हैं, वो पेरेंट ईगो रखते हैं. ठीक है. नाउ इसके अंदर में दो तरीके के पेरेंट ईगो हैं, क्रिटिकल पेरेंट ईगो एंड नर्चरिंग पेरेंट ईगो. जो हमारे फादर का बिहेवियर होता है ना, हमारे जो फादर होते हैं, फादर एंड मदर, आर फादर्स आर क्रिटिकल, आर मदर्स आर नर्चरिंग. सो मदर्स क्या होती हैं, वो पेरेंट वाला ही एटीट्यूड रखती हैं, वो हमें भी मॉरल्स ही डालेंगे, रूल भी बनाएंगी, लेकिन दे आर लाइक नर्चरिंग, दे आर डेवलपिंग वंस, दे शो a kind of kindness when they are interacting with the people. However, हमारे जो फादर होते हैं वो हमेशा इवैल्यूएटिव स्टेज में होते हैं. You will see them when they are interacting with you, पढ़ाई क्यों नहीं हुई, ये तुम कैसे कर, they are critically analyzing the situation. Such parent ego is called as critical parent ego. Clear? Adult ego. Now when you are making your career decisions, when you make your career decision, when you cross 18 years, जब आप क्रॉस करते हो अपना 18 साल, तो कहते हैं आप अडल्ट हो गए. अडल्ट हो गए मतलब आप समझदार हो गए हैं, सोचने के लिए, अपने डिसीजंस लेने के लिए, चीजों को एनालाइज करके आप अपने डिसीजंस आप ले सकते हैं, फैक्ट को स्टडी करके ऑथेंटिक रह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. सो दिस ऑल बिहेवियर इज एसोसिएटेड विद अडल्ट बिहेवियर. सो अडल्ट ईगो शोज लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल. The person behaving or interacting with adult ego seeks all the information properly, validate it using this reasoning skills and then provide it to another people. The adult ego state is authentic, direct, reality based, fact seeking, problem solving. They assume that human beings are equal, worthy and responsible. Process of adult ego state formation goes through own experience and continuously updating. Now what is this? जो adult ego में होता है ना, जब पर्सन adult ego के प्रोसेस में होता है, वो बचपन से शुरू हो जाता है. ठीक है. ये कंटिन्यूअसली, ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को हमेशा अपडेट करते रहते हैं. They keep on updating themselves. People with adult ego state gather relevant information, careful analysis, generate alternative, make the logical choices. समझदारी से काम करते हैं. ठीक है. रूल मेकिंग नहीं थे,
ये जो अडल्ट ईगो वाले लोग होते हैं ये सभी को इक्वल समझते हैं, सभी को समझते हैं, सभी लॉजिकली डिसीजन लेते हैं, खुद भी लेते हैं, इक्वल ट्रीट करेंगे, एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल ट्रीट करेंगे, एक दूसरे की वैल्यू समझते हैं, दैट इज अडल्ट ईगो। मूविंग टू चाइल्ड ईगो, हमारे घर के बच्चे कैसे होते, सारी चीजें इलॉजिकल करते हैं, टीवी देखना है मतलब देखना है, ये टॉय चाहिए मतलब चाहिए, वो उनका जो बिहेवियर होता है वो इमीडिएट नीड्स को फुलफिल करने के लिए होता है, दे वांट टू सैटिस्फाई देयर इमीडिएट नीड्स एंड इमेच्योर बिहेवियर। तो कोई भी पर्सन जब चाइल्ड ईगो स्टेट में होता है वो इमेच्योर एक्ट करेगा, he won't be thinking anything logical, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, नहीं। yes but they are creative, बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, they can go into depression, so creative होते हैं, डिप्रेशन में फेस डिप्रेशन। कंफर्मिटी हियर मीन्स हर चीज बच्चे हमारे पास में आके पूछते, मम्मा ये कर लूं, डैडी ये कर लूं, मैं भी खा लूं, मैं भी खेल लूं, सो दैट इज दे वांट टू कंफर्म एनीथिंग डिसीजन दे आर टेकिंग, दे वांट टू कंफर्म फ्रॉम समवन एल्स, दे हैव एंजाइटी, जल्दी चिढ़ जाते हैं, जल्दी गुस्सा आता है बच्चों को। डिपेंडेंट होते, हेट, फियर, जॉय, इमोशनल, सेंटिमेंटल आर सम ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक। नाउ दिस चाइल्ड ईगो has also 3 levels: natural, adaptive, rebellious. What is natural? जो natural child होते हैं ना वो सेंसस, इम्पल्सिव, अफेक्शनेट, ये ऐसे बच्चे होते हैं जो हमेशा चीजों को लेकर रिएक्ट नेचुरली करते हैं, मतलब चाइल्ड ईगो में है बट नेचुरल रिएक्शन है, दे आर नेचुरली लाइक दैट, ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे, वो दिखाएंगे नहीं, दे वोंट शो ओवर एक्टिंग। Adaptive child is one who is trained, instructed by parents to behave manner, जैसे हम बोलते हैं ना आप उनके घर जा रहे हो नमस्ते करना है, तो ऐसा बिहेवियर जो टॉट है, सिखाया है, ट्रेंड है, इंस्ट्रक्टेड है, दैट इज योर अडेप्टिव। rebellious, usually this kind of behavior is anger, fear, frustration, so when they are not allowed to open up, पहले जब आप उनको बांध के रखते हो, ज्यादा आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, they will start having anger, fear and frustration, that is your rebellious 3 states. I hope that is very very clear. So now this is the question, answer is already given but still read out the question. Rationality means logical, so logical क्या होगा, कौन करता है logical, adult. Fantasizing the things, imagining the thing, child. Demonstrate